180 ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। एशिया में 28 कंट्री का सफ़र किए, यूरोप में लगभग 48 कंट्री का सफ़र किए, अफ्रीका में 52 कंट्री का सफ़र किए, मिडल ईस्ट में 10 कंट्री, साउथ अमेरिका में 13 कंट्री, अंटार्कटिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, तो 7 महादेश का 180 देश का सफ़र करके मैं अभी ये 180 देश हैं जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आए। शुरुआत एक साइकिल के सहारे से किए और ये साइकिल मेरे 8वां साइकिल है। 3 साइकिल रास्ता में चोरी हो गया, 3 साइकिल खराब हो गया, 1 साइकिल टेक्सास में पड़ा हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਜਾਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। मैं एक फाइल बनाया और 100 कॉपी का फाइल मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में उनको न्योता के वास्ते मैं उनको लिखा था। एम्बेसी से मुझे एक स्पेशल लेटर लेना पड़ता है, जिस लेटर के वजह से मुझे वीज़ा मिलता है। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। मुझे ऐसा लगा था शायद उन्होंने मुझे छोड़ेगा नहीं, और वो कौन है मुझे पता नहीं है। मुझे जब रास्ता से पकड़े, आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम काबुल टू हेरा, 146 किलोमीटर के बाद मुझे उन्होंने 4-5 लोग एक ब्रोकन जीप से आया, मुझे पहले बड़ा पिटाई किए, फिर मैं उनको ये समझाया आप मुझे मत मारो, आप मुझे आपके साथ ले चलो। सो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ तो मुझे बाद में मार देना। मैं 4 दिन कंटिन्यूसली स्टार्व एंड बीटन, मुझे पिटाई हुई, मुझे खाने के कुछ नहीं मिले। तो मुझे एक टाइम में उन्होंने रोटी और कुछ फ्रेश मीट दे रहा था, आधा फ्राई करके, तो मैं वो खा नहीं पाए। तो फिर 4 दिन के बाद मुझे जो ट्रांसलेटर मिले उनको मैं ये विनती की जो आप मेरे हर वर्ड को उन्होंने अच्छा से एक्सप्लेन करो। 9 दिन क्लीनर के काम किए, फिर 11 दिन उनके लिए खाना बनाए। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान -40 डिग्री में मुझे रास्ता के ऊपर से चलना पड़ा, और यहाँ पे बहुत बर्फबारी हो रहा था। यात्रा के दौरान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ? ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ HIV ਏਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ। 180 ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਖਿਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। सुमन देवनाथ जी नाल, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। सुमन जी नमस्कार एंड सत श्री अकाल, आप सभी दर्शकों को मेरे प्रणाम जी। इस तो पहला कि आप कुछ सवालों का इन्हां दी जो साइकिल यात्रा आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੇਵ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ HIV ਜਾਂ ਏਡਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ? मेरे ये चिंतन मेरे मन में आए और मुझे लगा जो पहले भारत और उसके बाद विश्व का यात्रा करना है। सो व्हेन आई वाज 14 years old, somebody was died by HIV AIDS and I thought that I wanted to start a campaign for HIV AIDS, first in India and then world. सभी तो पढ़ाई करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पालते हैं और मर जाते हैं। एक साथ रहने के बावजूद भी कुछ अलग करने के मेरे मन में ये भावना आए तो मैं पहले मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में बताया। जो मैं 3 महीने ये सफ़र करना चाहते हैं। मेरे पापा ने बहुत गुस्सा किए परंतु माँ ने इजाज़त दी, तो इसी तरह समझौता करके मैं ये सफ़र का शुरुआत की। 27 में 2004 साल में पहले भारत यात्रा और उसके बाद विश्व यात्रा के लिए प्लान बनाए और लगभग 2.5 साल में भारत और जितने नेबर कंट्रीज़ हैं उसको सफ़र किए, लगभग 10 नेबर कंट्रीज सफ़र किए। उसके बाद एशिया में 28 कंट्री का सफ़र किए, यूरोप में लगभग 48 कंट्री का सफ़र किए, अफ्रीका में 52 कंट्री का सफ़र किए, मिडल ईस्ट में 10 कंट्री, साउथ अमेरिका में 13 कंट्री, अंटार्कटिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, तो 7 महादेश का 180 देश का सफ़र करके मैं अभी ये 180 देश हैं जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आए। लगभग 12 मिलियन लोगों को ये सफ़र के दौरान मिले और 180 देश का लगभग 1,83,000 किलोमीटर का सफ़र तैयार करके यहाँ पे पहुँचे। मैं ये मानता हूँ जो एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विद इन ए मैन। सो हर इंसान को अपना हिसाब से बेस्ट इस सोसाइटी को देना है, जिससे हमारा सोसाइटी के साथ साथ हमारा देश और हमारा विश्व को तरक्की हुए। वसुधैव कुटुंबकम जिसको बोलते हैं, जो वेदा में है, जो ये पूरा विश्व एक परिवार है, तो हम विश्व परिवार का अंश हैं और ये विश्व परिवार और विश्व कल्याण के लिए कुछ सोचना चाहिए। ऐसा जो मकसद है वो लेके निकले और HIV एड्स के साथ साथ भारतीय संस्कृति के जो मैसेज मैं लेके 191 देश का यात्रा कर रहा हूँ, इसके अंदर 180 देश का सफ़र हुई। तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और ये ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन इज़ द फर्स्ट सिटी वेयर आई केम फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी एंड यहाँ से मैं पूरा ऑस्ट्रेलिया का सफ़र करेंगे। यहाँ से सिडनी के तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर मेलबर्न, एडेल, पर्थ, डार्विन, तो ये सब जगह का सफ़र करेंगे। तो मुझे लगता है 3-4 महीने
मुझे ऑस्ट्रेलिया में लगेगा। मैं ये सफ़र शुरुआत एक साइकिल के सहारे से किए और ये साइकिल मेरे 8वां साइकिल है। 3 साइकिल रास्ता में चोरी हो गया, 3 साइकिल ख़राब हो गया, 1 साइकिल टेक्सास में पड़ा हुआ है और ये मेरे जो साइकिल हैं ये मैं यूएसए से मुझे मिला, यूएसए से इंडियन कम्युनिटी ने मुझे दिए, वहाँ से मैं ये सफ़र कर रहा हूँ। तो लगभग 48 कंट्री का सफ़र मैं ये साइकिल में किए। और मैं क्यों एक साइकिल का ये यात्रा में चुना, मेरे ये साइकिल का ये यात्रा में चुनने के सबसे बड़ा जो मकसद है, bicycle is the easiest vehicle which can take me to reach to people. It is environmental friendly. It is crossing for finger for global warming. It is an ultimate yoga. And when I started my journey, then I didn't have sufficient fund. So I thought that if I will take cycle, then it will be most cheapest way to travel around the world. तो ये 5 जो मकसद हैं जो मेरे इस सफ़र के दौरान मुझे ਸਾਈਕਲ को मैं चुना। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਪਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਜਾਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? एक्चुअली मैं जब भारत सफ़र किया था तो 25 चीफ मिनिस्टर 26 गवर्नर को मिले थे और लगभग 200 आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर को मिले थे, जिसके लेटर्स मैं एक फ़ाइल बनाया और 100 कॉपी का फ़ाइल मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में उनको न्योता के वास्ते मैं उनको लिखा था। तो I was received by External Affairs Minister, Information Broadcasting Minister, Health Minister, Tourism Minister, Sports Minister, even Prime Minister and President of India. तो उनके जो चिट्ठी हैं जो मैं एक देश से दूसरा देश में एम्बेसी टू एम्बेसी भेज देता हूँ, और एम्बेसी क्या करते हैं, एम्बेसी जो मोरल सपोर्ट है वो करते हैं, और जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट का ज़रूरत है वो इंडियन कम्युनिटी और कंपनीज ने करते हैं, जो मेरे ये सफ़र के दौरान मुझे सहायता होते हैं। तो जो मोरल सपोर्ट मीन्स एक इंडियन एम्बेसी से मुझे एक स्पेशल लेटर लेना पड़ता है, जिस लेटर के वजह से मुझे वीज़ा मिलते हैं। तो इसी तरह मैं हर देश से दूसरा देश को जाने की जब मुझे प्लान होता है तो मैं 3-4 देश का वीज़ा एक देश से ले लेते हैं ये लेटर के सहारा से। तो इसी तरह मैं एक देश से दूसरा देश जा सकते हैं, और ये ऐसा अनुभव हुआ है जो ये लेटर के दौरान मुझे लगता है जो जिस गवर्नमेंट को ये लेटर को अप्रोच किया गया वो कभी डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बंदा हमारा देश में जाके रुकेगा नहीं। तो ये जो एक कंफर्मेशन मिलते हैं उनको, इसके वजह से मुझे हर देश का वीज़ा मिलते हैं। ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ नहीं कि मैं गलती कर ली, मैं कित्थे तुरया होया? नहीं, मैं कभी मेरे मन में ये भावना नहीं आए जो मैं कोई गलती कर लिया, जो दुनिया को सफ़र चुन लिया। मुझे हर पल ये लगते हैं, मैं इतना अनुभवी लोगों को मिलते हैं। मैं लगभग 6 राजा को मिले हैं, लगभग 38 प्रेसिडेंट को मिले हैं, 72 प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। हर देश में मेयर्स, गवर्नर्स, उन लोगों को मिलते हैं। साथ साथ आम जनता से जितना हाई प्रोफाइल्स लोग हैं उनको मिलते हैं। तो मुझे लगता है जो मैं शायद ऐसा गिने चुने लोग हैं दुनिया में जिसको इतना ब्लेसिंग्स, इतना प्यार मिलते हैं दुनिया में। तो इसके साथ साथ जैसा तालिबान मुझे 24 दिन फाड़ लिया था अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे काफ़ी मुश्किलों मुसीबत को सामना करना पड़ा। लगभग 18 बार लोगों ने
पिटाई किए। जो स्किन हेटेड लोग होते हैं, सफ़ेद लोग काले लोगों को अच्छा नहीं लगते, काले लोग जो है उसका जो सफ़ेद है, जो यूरोपियन है, उनको अच्छा नहीं लगता। इसके बीच में पड़ गए। फिर जंगली जानवर को सामना करना पड़ा। कभी रास्ता में लोग मुझे काफ़ी समय तक खड़ा कर दिया और उनके अंदर जो रोष व आक्रोश देखा है, पता नहीं है किसके वास्ते हैं, परंतु ये सब जो मैं सामना किया है, मुझे हर पल लगता है जो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जो मुझे ये विश्व में मिले, और हर जगह में मैं इंसानियत में परमात्मा को देखते हैं। ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। 24 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੇ ਔਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? मुझे ऐसा लगा था शायद उन्होंने मुझे छोड़ेगा नहीं, और वो कौन है मुझे पता नहीं है। मुझे जब रास्ता से पकड़े, आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम काबुल टू हेरात, 146 किलोमीटर के बाद मुझे उन्होंने 4-5 लोग एक ब्रोकन जीप से आया, मुझे पहले बड़ा पिटाई किए। तो पिटाई करने के बाद मुझे ये पता नहीं लगा क्यों मुझे पिटाई कर रहा है। तो फिर मुझे लगा जो ये इनको कुछ गलतफहमी हुई है। तो बहुत कठिनाई मोमेंट था। तो मैं ये कोशिश की है जो उनको समझाने के, परंतु उन्होंने समझ नहीं पाए। फिर मारपीट करने के बाद फिर मैं उनको ये समझाया, आप मुझे मत मारो, आप मुझे आपके साथ ले चलो। सो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ तो मुझे बाद में मार देना। तो इसी वास्ते उन्होंने मुझे आंख बंद करके एक लंबा ड्राइव में लेके गए, जहाँ मैं 4 दिन कंटिन्यूसली स्टार्व एंड बीटन, मुझे पिटाई हुई, मुझे खाने के कुछ नहीं मिले। तो मुझे एक टाइम में उन्होंने रोटी और कुछ फ्रेश मीट दे रहा था, आधा फ्राई करके, तो मैं वो खा नहीं पाए। तो फिर 4 दिन के बाद मुझे जो ट्रांसलेटर मिले, उनको मैं ये विनती किए जो आप मेरे हर वर्ड को उन्होंने अच्छा से एक्सप्लेन करो। तो इसी तरह उनका जो हर प्रश्न का मैं जवाब देने की कोशिश किए, परंतु मुझे जो लगा, जो उनको जो मन के अंदर जो भावना आए, तो उन्होंने मुझे पूछा, इफ़ वी डोंट वांट टू लेट यू गो देन व्हाट यू विल डू। देन मैं ये इस तरह मैं उनको जवाब दिए, if you don't want to let me go, just give me some job. If I cannot continue my mission, let me contribute yours. तो इसी तरह उन्होंने मुझे देखा जो मैं उनको किसी तरह सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट आई कैनॉट टेक ए गन एंड गो टू वॉर फ्रॉम टू फाइट विद अदर्स, आई कैनॉट किल पीपल। दैट इज़ मेरे धर्म का धर्म नहीं सिखाते हैं। तो उसके वास्ते उन्होंने बोला जो आप क्या कर सकते हो, तो मैंने बोला जो आई कैन क्लीन योर हाउस, आई कैन wash your clothes, I can clean your utensils, even I can wash your all weapons also. तो इसी तरह उनको मन में ये भावना आए जो ठीक है, इनको कोई क्लीनर के काम किया दिया जाए। तो मैं 9 दिन क्लीनर के काम किए, फिर 11 दिन उनके लिए खाना बनाए। फिर मैं एक दिन उनको ये बोलने की कोशिश की है, मैं आपको खाना ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, तो वुड यू माइंड टू लेट मी टू कुक फॉर यू, इफ़ यू लाइक देन आई कैन कुक फॉर यू। तो इसी तरह उन्होंने मान लिए और मैं उनके लिए खाना बनाए, और जो उनको लगा जो हाँ ठीक है, तो इसी तरह चल रहा था। तो 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला जो वी विल लव टू लेट यू गो बट व्हाट विल टेल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन मैं ये बोला, I'll be very thankful, and I will thankful for you, and I would like to thankful for all people's prayers whoever I met in my life, and I'm waiting to see those people in this world wherever I will go। तो इसी तरह मैं उनको बताने की कोशिश की। फिर उन्होंने आँख बंद करके मुझे हेरात के रास्ता में 16 किलोमीटर पहले छोड़ के गए। तो वहाँ से फिर मेरे यात्रा शुरू किए। तो फिर वो यात्रा भी इतना ईजी नहीं था।
ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान -40 डिग्री में मुझे रास्ता के ऊपर से चलना पड़ा और यहाँ पे बहुत बर्फ़बारी हो रहा था और बीच में कहीं मैं ग्लव्स को खो दिया तो फिर बर्फ़ ऐसा आके गिर रहा था जो जैसा शरीर के अंदर कोई ऊपर से थाउजेंड ऑफ नीडल्स वर स्कैटरिंग। तो इसी वक्त में मैं हर पल परमात्मा को ये बोलने की कोशिश की, मुझे जाने दो, मुझे आप सहायता करो। और इसी तरह मैं आगे बढ़ते गए और मेरे सफ़र पूरा किए। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੇਦਰਦ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? एक्चुअली मैं 20 साल उम्र तक इतना परिवार से खुशी मुझे मिले तो आई अल्टीमेटली कैन से दैट इट इज़ अ फुलफिलमेंट ऑफ द लव एंड अफेक्शंस। तो मैं ऑनेस्टली कभी मुझे लगता नहीं है जो आई एम मिसिंग समथिंग फ्रॉम माई फैमिली। तो मैं जहाँ जाते हैं वहाँ पे परिवार बना लेते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे परिवार मान के चलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपनापन लगते हैं। तो इसी जो अनुभव है मैं वो लेके चलता हूँ। तो और आई नेवर थिंक बैक दैट जो हो गया, परंतु आई टेक एज ए एक्सपीरियंस एंड एज ए ऐसा अनुभव जो प्यार और भावना की है। तो इसी तरह मैं हर पल को याद करता हूँ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ? मेरे पास साइकिल का इक्विपमेंट्स हैं और एक्स्ट्रा टायर ट्यूब्स रखता हूँ। तो उस तरह कोई पंक्चर वगैरह छोटा मोटा प्रॉब्लम मैं ठीक कर लेता हूँ। और जब मैं कोई बड़े शहर से दूसरा शहर के तरफ जा रहा हूँ तो उसके पहले एक बार चेकअप कर लेता हूँ, कोई भूल चूक तो ना हो जाए, ब्रेक ठीक चल रहा है क्या नहीं। तो इसी हिसाब से मैं उसको प्रिपेयर करके फिर आगे चलता हूँ, जिससे मुझे पथ में कोई प्रॉब्लम ना होए। और बाकी तो कुछ होए तो ऐसा लोगों ने कभी मदद कर देते हैं, कोई नज़दीक है कोई साइकिल शॉप में लेके चला जाते हैं जहाँ पे मैं ठीक कर सकता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? मेनली मेरा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो डिफरेंट कम्युनिटी एंड कंपनीज सपोर्ट करते हैं, जिस सपोर्ट $1 1 किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने डेडिकेट करते हैं। तो इसी तरह मुझे कोई 100 किलोमीटर क्या 500 किलोमीटर क्या 1000 किलोमीटर जो मेरे सफ़र के दौरान ऑनरेली ख़रीदना चाहते हैं, इसी हिसाब से मुझे फाइनेंशियली एड और सपोर्ट मिलते हैं, कंपनी नहीं तो कोई कम्युनिटी के थ्रू से। ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਗਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਗਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਿਆ? नहीं, हर देश में इंडियंस काफ़ी मिले और जो मुझे हर पल ऐसा लगते हैं जो इंडियंस हैव ए बिग हार्ट, उन्होंने मुझे हर जगह में सपोर्ट करते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, हर जगह में अपनापन मिलते हैं, अपना लोगों को साथ संपर्क होता है। और यहाँ पे मैं अभी जो सिख टेंपल में रुका हूँ, यहाँ पे प्रबंधक कमेटी बहुत अच्छा है
और मैं प्रबंधक कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ साथ जितना इंडियन परिवार को मैं मिला हूँ यहाँ पे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उनका सपोर्ट इज़ रियली I feel I'm fortunate to being meeting them, and I'm thankful for them because for their presence, which is really wonderful, and it is a great time which I'm having here. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਗਨ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਗਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਲੋਗਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੈ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਰਹੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਕਰ ਦੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਸੋਕਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5D ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ 5D ਵਿਦ ਯੂ, ਲਾਈਕ ਡਰੀਮ, ਡਿਸੀਜਨ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ 4-4, 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਵਨਾਥ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लगा। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक अच्छा अनुभव था, कोई स्पोर्ट्स क्लब में हम नीचे में बैठे एक साथ बातचीत किए, और बच्चे लोगों को अंदर बहुत जज्बा थे, और दे आर रियली वेरी open, and it was first time I met them, and but we felt that we really know quite long time each other. तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, जो मुझे लगा, जो यहाँ भी एक परिवार बन गए, जो परिवार का प्यार मुझे मिले, और पल बिताने के लिए मौका भी मिले। जी बिल्कुल जी, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਵਨਾਥ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि इस तो बाद की है। एक्चुअली इसके बाद मुझे 11 कंट्री का सफ़र जारी रहेंगे। मैं 191 देश का सफ़र कर रहा हूँ, तो वो साउथ ईस्ट एशिया का सफ़र है,
तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ 5-6 महीने के बाद मैं शायद इंडिया वापस जाऊँ और मेरे एक फ्यूचर प्लान है टू बिल्ड ए ग्लोबल विलेज an ecological and sustainable village which 4 hectare land for accommodation and 4 hectare land for food, so almost 200 to 250 people can live together, and 30 ecological engineer, 10 MBA student, 10 MCA students who will take care of the village, and they will be internship. तो इसी तरह मेरे मन में एक भावना है जो ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, बेगर रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और भी नए कोई सब भावना लेके इसके ऊपर काम किया जाए। आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय करतारपुर जो गुरु नानक देव जी ने बनाए थे, जो कृत करो वंड के छको एंड नाम जपो, जिसको मेन लक्ष्य था। तो आई एम फॉर्चुनेट टू बीइंग एंड थिंकिंग that we are looking forward a land and where we will start a global village project. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੁਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਲਵੀ ਖੱਤਰੀ।